What are the various uses of date palm tree for the inhabitants of Sahara? Question number D1, page number 58. Page number 58, फर्स्ट पैरा डेट पाम के बारे में पूछा है. व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ डेट पाम ट्री. तो फर्स्ट पैरा के थर्ड लास्ट लाइन, डेट इज द मोस्ट कॉमन फ्रूट हियर. Date is the most common fruit here. Both animals and people eat dates. The sap of date tree is used to make wine. The seeds of date fruit are crushed and used as fodder for the camels and goats. The leaves and trunks are also used for making baskets, ropes, and doors. This much. इतने हो गए आपके इस क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. इफ इट इज पॉसिबल देन कीप योर वीडियो ऑन एंड डू द वर्क परफेक्टली. ओके, नेम द टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट. आई थिंक ये D1 एंड 2 मैंने करवाया था, 3 तक मैंने करवाया था, 4 से शायद करवाना होगा. इज इट करेक्ट? यस ना? यस मैम. ओके ओके ओके. तो लोकेशनल जोन्स में बता दी थी, और वेल्ड ग्रासलैंड्स के 2 रिवर थे, लिम्पोपो एंड ऑरेंज. अब चलते हैं. वाई इज द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा नोन एज सुंदरबन? ये D4 क्वेश्चन नंबर D4 है ना. तो इसके आंसर हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाले पैराग्राफ में देखेंगे. पेज नंबर 64, पेज नंबर 65. The lowest, second para, page number 65. The lowest part of Ganga Delta is covered with mangrove forest. These forests are dominated by a plant species locally known as Sundari, and that is why this area is named as the सुंदरबन. आदित्य रंजन माइक ऑफ कर लीजिए. तो आप लोगों को मिला पेज नंबर 65 का सेकंड पैरा. ठीक है, ये D4 का आंसर. इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो मैम. ओके, नो मैम. ओके ओके ओके. नो मैम. Now D5. Mention the 3 layers of foliage of the equatorial forest. Equatorial forest Amazon basin में चलते हैं. Yes, page 63. आपको सेकेंड पैरा अमेजन बेसिन का, पेज नंबर 63 का सेकेंड पैरा, जहां की बोल्ड लेटर में कैनोपी लिखा हुआ है. यू कैन सी कैनोपी इज रिटन इन बोल्ड लेटर. उसके ऊपर वाले लाइन से टिक करना शुरू कीजिए. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ फॉलिएज इज नोन एज कैनोपी. बिलो दिस there are 2 more layers of foliage consisting of shrubs and bushes. The forests are so dense that the sunlight hardly reaches the ground. यहाँ तक होगा. ठीक है. The topmost layer से
ग्राउंड तक। एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. Okay. Okay. No, ma'am. Now we will move to question number E1. Okay. E1. Distinguish between Sahara Desert and the Ladakh Desert. तो आपको एज यूजुअल बीच में लंबे लाइन ड्रॉ कर लेने होंगे, मतलब पार्टीशन. One side you have to write Sahara Desert and the other side you have to write Ladakh Desert. Now I am giving you the points and you can jot down anywhere because I think this is not given in sequence or perfectly. So in this here some white place is there. You can note it. Right. Sahara is a hot desert, and next side you write that Ladakh is a cold desert. Okay. One side you write Sahara is a hot desert, and the other side write that Ladakh is a cold desert. Okay. Point number 2. Location. Acha. One more thing, you have to keep it in your mind that in question, how many points are asked? So, in this question, 3 things are asked. One is location, second one is climate, and third one is vegetation. So you have to write only this much. Okay. तो शिवम माइक ऑफ करो बेटा. हाँ, तो लोकेशन में मैंने लिखाया था जो वही कर दो कि सहारा इज लोकेटेड. क्या करवाई थी, कहां पर था? सहारा इज लोकेटेड इन द. Ma'am, can I? हाँ बोलो. Ma'am, it is Ma'am, northern part of Africa. Okay. Okay. part of Africa. Okay, okay. Sahara is located in the northern part of Africa and Ladakh is located in the rain shadow area of Himalayan ranges. Ladakh is located in the rain shadow area of Himalayan ranges. अब सहारा के आप क्लाइमेट लिखिए. तो क्लाइमेट क्या लिखेंगे आप? लद्दाख के सॉरी सहारा का क्लाइमेट में टेम्परेचर और रेनफॉल आता है. तो टेम्परेचर में लिख लीजिए, पेज 57 में दिया हुआ है. एवरेज एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 20 सेंटीमीटर and the day temperature is about 43 degree and the temperature at night goes down about 10 degree Celsius. और इसमें ये भी लिख देना होगा कि it is very hot during the day whereas the nights are cool. ये हो गया उसका क्लाइमेट. आपको दिखा पेज 57 में लास्ट में सारे लाइन दिए हुए हैं कि क्लाइमेट में क्या क्या होता है. क्लाइमेट में 2 चीज हम लोग इंक्लूड करते हैं, टेम्परेचर एंड रेनफॉल. ओके, तो टेम्परेचर और रेनफॉल पेज 57 के लास्ट में दिए हुए हैं कि एवरेज एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 20 सेंटीमीटर. It is very hot during the day whereas the nights are cool. The day temperature is about 43 degrees Celsius and the temperature at night goes down to about 10 degrees Celsius. ये सहारा का है. अब चलते हैं पेज नंबर 59 में
और 59 के ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको लद्दाख के मिल जाएंगे। लिखिए, टेम्परेचर इज वेरी लो फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। Temperature is very low in the major part of the year and average annual rainfall is only 8 centimeter. Average annual rainfall is only 8 centimeter. ठीक है, अच्छा। अब हम लोग चलते हैं, क्लाइमेट हो गए, लोकेशन हो गए, और तीसरा था वेजिटेशन। वेजिटेशन में कैक्टस लिख दीजिए सहारा में, एंड लद्दाख में कर दीजिए मॉसेस एंड लीचन्स। कैक्टस, CACTUS, कैक्टस आपका सहारा हो जाएगा। और लद्दाख में कहीं है क्या? कहीं तो दिख नहीं रहा है लद्दाख। वेजिटेशन, वेजिटेशन इज स्कैंटी विलो ट्रीज, ये भी लिख सकते हैं। मॉसेस लीचन्स ना लिखकर लिखिए वेजिटेशन इज वेरी स्कैंटी। पेज 59 लद्दाख का जो आपका मैप दिया हुआ है उसके नीचे है, लद्दाख के मैप के नीचे वाला लाइन है, वेजिटेशन हियर इज वेरी स्कैंटी एंड इज फाउंड ओनली वेरी स्कैंटी। और उसके बाद आगे बढ़ जाइए, ओनली दोज प्लांट्स ग्रो विच रिक्वायर वेरी लिटिल वाटर, विलो ट्री grow here, willow tree grow here। हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर E2। Why are the rainforest of the Amazon basin disappearing? Amazon basin पेज नंबर हम लोगों का हो जाएगा पेज नंबर 62-3 में। कहाँ पे डिसअपियर हो रहा है वो पैरा खोजते हैं। अमेजन बेसिन, मैम पेज 63 का लास्ट पैरा में, 63 के लास्ट पैरा में, यस, लास्ट पैरा का थर्ड लाइन। इन द पास्ट, लास्ट पैरा पेज 63 थर्ड लाइन। In the past few decades, due to increase in population, many rainforests have been cleared for various purposes. People are moving towards this area because of economic potential of the Amazon basin. Vast forest areas were cleared for setting up camp areas and constructing roads. हो गया हमारा E2। Now, why is the density of population in the Sahara Desert low? Density of the, due to harsh climatic condition, due to, लिख लो कहीं पर, due to harsh climate, HARSH, due to harsh climatic condition, density of population is very low. Most of the land is barren and uninhabited. दो लाइन लिखिएगा, ड्यू टू द हार्श, मिलेगा एक लाइन है, ये लाइन अपने से लिखाई, ड्यू टू द हार्श, HARSH, harsh climatic condition, and most of the land is
barren, BARREN. Most of the land is barren and uninhabited. Uninhabited. UN, uninhabited. HABITED. Uninhabited. So density of population is low. अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर E4. फिर है डिफरेंशिएशन, फिर आपको बीच में लाइन ड्रॉ करना है और दो साइड में दो तरह के ग्रासलैंड लिखने हैं. शीजा करीम, म्यूट योरसेल्फ. शीजा, म्यूट योरसेल्फ. हाँ, तो प्रेरी एंड वेल्ड के बारे में लिखना है. तो फर्स्ट लाइन में लिखिए पेज 60, पेज नंबर 6060. द ग्रासलैंड प्रेरी का फर्स्ट लाइन. The grassland in the North America are known as prairies. The grassland of the North America is known as prairies. और वेल्ड में करना है The grassland of South Africa is known as veld. इसी लाइन को बेस मानकर वेल्ड का फर्स्ट लाइन आप लिख दो. क्योंकि इस तरह से उधर नहीं लिखा हुआ है. द ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका इज नोन एज वेल्ड. अब प्रेरी का सेकेंड लाइन करो. They cover a large area of USA and Canada. They cover a large area of USA and Canada. पेज 62 में चले जाइए. Veld grassland covers the southern part of Africa. आपको वेल्ड में फोर्थ लाइन दिख जाएगा. Veld grasslands covered the southern part of Africa. Southern part of Africa. अब the area prairies में लिख दीजिए. Area is drained by the river Mississippi and its tributaries. आपको दिखेगा प्रेरीज के शुरुआत में ही जहां आप टिक करना शुरू किए हो. द ग्रासलैंड, दिस एरिया इज ड्रेन्ड बाय द रिवर मिसिसिपी एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज. और वेल्ड में लिख दीजिए मेन रिवर्स आर द लिम्पोपो एंड ऑरेंज. मेन रिवर्स आर लिम्पोपो and orange. और prairies have a continental types of climate. Summers are hot, winters are, लेकिन ये दोनों में सेम ही है. ये मत करो, ये मत करो. बेसिन इज वेरी फर्टाइल. एक मिनट. Excuse me, ma'am. Can you repeat second one? अब सेकंड में क्या करवा, हमको याद थोड़े है. सेकंड में क्या करवाएं, तुम ही लोग बोलो कोई.
They covers a large area of USA and Canada. यस 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 यस, और उसमें करवाई थी इट कवर साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। हाँ हाँ, अब कर लो कि बेसिन, जो मिसिसिपी रिवर आपने किया तुरंत में कर लीजिए। बेसिन इज फर्टाइल एंड इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, और इसमें कर लीजिए वेल्ड में कि एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल। देखो वेल्ड, साउथ अफ्रीका का जो ग्रासलैंड का पिक्चर दिया हुआ है उसके सामने वाला लाइन, एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल इन द वेल्ड एज इट इज अ प्लेटो एरिया एंड द सॉइल इज इनफर्टाइल। देखा? यस मैम। पेज नंबर 62 में है। तो इतना काफी है। आपने रिवर का नाम लिख दिया, प्रेरी वाला वो फर्टाइल है और वेल्ड वाला इनफर्टाइल है, ये भी लिख दिया, दोनों का लोकेशन लिख दिया, और बस हो गया। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग। वाई इज, अंशिका म्यूट हो जाओ। अब हम लोग चलते हैं, वाई इज द गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन थिकली पॉपुलेटेड। गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन, पेज 65, second last para. The soil of the Ganga Brahmaputra basin is very fertile and suitable for cultivation of various crops like rice, wheat, sugarcane, jute, and tea. Agro-based industries like textile, sugar, etc. are common in this region. हाँ, क्या बोली? एक तो सॉइल फर्टाइल कर दिए, कल्टीवेशन ये सब होता है ये कर दिए, इंडस्ट्रीज भी कर दिए, एग्रो बेस इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, sugar etc are common in this region. So population is developing at a very fast rate. So population is developing at a very fast rate. Population is developing at a very fast rate. तो ये आपका E5 हो गया। अच्छा, अब आप लोग बताइए कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में? किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो एक काम कीजिए। हाँ बोलो। Excuse me, ma'am. Can बोलो। you repeat E2? Ma'am, can you repeat E2? Amazon basin is disappearing. ये नहीं करवाई हूँ क्या? हम करवाएंगे। मैम मेरा छूट गया। हम करवा, बोल दो, कोई पढ़ दो बेटा, कोई पढ़ दो। मैं पेंसिल हाथ में नहीं ना, मैं कहीं टिक नहीं कर पा। हाँ बोलो बोलो, एक बच्चा बोलो ना, कोई एक बच्चा। Ma'am, page number 63, last para. In the past, Yes, yes, मिल गया। deciduous Okay. due to increase. Okay. Page 63, last para. In the past few decades से लेकर के वो लास्ट लाइन कंस्ट्रक्टिंग रोड्स तक। जिसने पूछा क्या समझ आई, मैंने कहीं भी छोड़ना नहीं है, सिंपल से सेंटेंस है। इन द पास्ट से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन कंस्ट्रक्टिंग रोड्स तक है। ब्रैकेट वाली बात आपको लिखनी नहीं है।
अच्छा, ABC हुआ है क्या बाबू? Yes, ma'am. ABC हो गया है। अब जिसे नहीं, जिसका छूट गया है वो अब थोड़ा सा रिकॉर्डिंग उस जगह कर सुन लेगा तो मिल जाएगा। अब हमको थोड़ा आगे बताने दीजिए, क्योंकि हमें आपको बहुत सारे वर्ड्स भी कराने हैं। कैसे वर्क आप तो जानते ही हैं, कभी मैं स्पेलिंग टेस्ट लेती हूँ, तो कभी मैं वर्ड मीनिंग करवाती हूँ, कभी मैप वर्क करवाती हूँ, बहुत तरह के चीज होते हैं। हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ, तो नेक्स्ट सुन पा रहे हैं? Yes, ma'am. ओके, तो अब आप लोग बताइए कि अगला दिन हम लोग, नेक्स्ट डे हम लोग क्या करके आएंगे? कुछ लर्न करके आओगे या कोई चैप्टर बाकी है तो उसको करा देते हैं? अच्छा हाँ, बाकी है, हमें लगता है मेजर रिलीजन्स बाकी है। तो कल, टुमारो वी विल स्टार्ट, यस, चैप्टर नंबर 17, है ना? चैप्टर 16 तो आई थिंक कंप्लीटेड बाय अस। Ma'am. क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है तो हाँ, तो चैप्टर 16 के क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे और 17 के भी साथ साथ करेंगे। पहले कल हम चैप्टर 17 को पढ़ा देते हैं। आर यू ऑल रेडी? एग्री विथ मी? Yes, ma'am. ठीक, पहले पढ़ा दूंगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करा के फिर हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो हम लोगों का फिर सारा हो जाने पर हम लोग एक एक दिन एक एक चैप्टर। आप बताइए, मैं रिटन टेस्ट लूं या ओरल लूं? ओरल ही ले लेते। मैम ओरल। मैम रिटर्न। रिटन। एक मिनट, अगर रिटर्न लेते हैं तो आप लोग थोड़ा सा लंबा समय लगाओगे, तब तक में लगेगा कि आप भी चुप हो, मैं भी चुप हूँ। ये तो सामने बैठ के नहीं हो रहा है ना बेटा। तो ऐसा करते हैं, हम लोग ओरली लेते हैं, और जब वन वर्ड मिडिल ऑफ द चैप्टर से दूंगी तो 2 सेट्स प्रोवाइड कर दूंगी दोनों क्लासेस के लिए, और उस वक्त आप लोग जल्द से जल्द वन वर्ड आंसर कंप्लीट करके 10 मिनट्स में मुझे सबमिट करना, और मैं फिर आप लोगों को फिर उसी तरह से रिवार्ड देने का सिलसिला शुरू करूंगी। बॉय ऑफ द डे एंड गर्ल ऑफ द डे, जो सबसे पहले अपना सारा सही बता देंगे, इस तरह से। ठीक है, ये फिर अगले दिन से। लेकिन आज इतने कम बच्चे क्यों हैं बाबू? दोनों क्लास मिल करके सिर्फ 35 है। कैसे हो, इतने कम क्यों है? कोई आइडिया, कुछ बात है क्या? ये तो सेकंड क्लास ही है, इस समय तो नेट आपका पूरा रहना चाहिए, है ना? Yes, ma'am. नहीं तो क्या बात है जो इतने कम बच्चे हैं? अच्छा ठीक है, तो हम लोग अब कुछ ही सेकंड बाकी हैं, तो हम लोग अब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप लोग कल फिर बुक कॉपी लेकर के बैठिएगा सारा। ओके, तो कल हम लोग फिर अगले दिन मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ये सारा नोट कॉपी में आज का होमवर्क है, राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 18 नोट कॉपी। और कौन बच्चा सारा किया है? आशीष, आपने सारा किया है? देख, Yes, ma'am. मैंने भी किया है। एक मिनट, आशीष ने किया है? आशीष, ma'am. आप क्लास ग्रुप में पोस्ट कर दो, ठीक है? और मैं उसे शिवम ई में पोस्ट कर दो, और आशीष F में पोस्ट कर दो। नेक्स्ट डे दूसरे बच्चे को फिर मैं काम दूंगी, ठीक है? चलिए, आप पोस्ट कीजिएगा, मैं देखकर ओके कर दूंगी। उस जगह का फोटो भेजना, मैंने उस पेज में देखे कि यहाँ से यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी, और पोस्ट कर देना। ओके, चलिए फिर